সময় ছিল যে সময়ে মানুষ এই পাহাড় অতিক্রান্ত করার জন্য কোনো রকম ট্রেনিং না নিয়েই আসতেন, কিন্তু আজ মানুষের হাতে এসে গেছে এক অন্যতম চাবিকাঠি। অর্থাৎ এখানে অনেক রকম ইনস্টিটিউশন আছে, যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনে মানুষ ট্রেনিং নিয়ে এবং সেই ট্রেনিংটাকে কাজে লাগিয়ে তবেই পাহাড়ের শিখরে উঠছে। আমরা এখন রয়েছি সেই রকম একটি অন্যতম পাহাড়ের ইনস্টিটিউশনে, যেখানে হচ্ছে যার নাম হচ্ছে হিমালয় মাউন্টেনিং ইনস্টিটিউশন। আমরা এই হিমালয় মাউন্টেনিং ইনস্টিটিউশনের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখানে মানুষ আসে তার জীবনে একটা লক্ষ্য নিয়ে এবং এখানে ট্রেনিং নেন এবং সেই ট্রেনিং নিয়ে তবেই তারা পৌঁছে যান পাহাড়ের শিখরে। আমরা দেখেছি বহু মানুষ আসেন এখানে এবং তাদের যে লক্ষ্য থাকে তারা সেই লক্ষ্যে হয়তো পৌঁছান, অনেকে হয়তো পৌঁছাতে পারেন না। কিন্তু একটা সময় ছিল যে সময় কোনো বেশিরভাগ মানুষই তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারতেন না, তাদের বহু মূল্যবান প্রাণ তারা হারিয়ে ফেলতেন এই পাহাড়ের বিপদসংকুল পথেই। আজ সেটা অনেকটাই হয়তো মুক্ত হয়েছে এই রকমই একটা ইনস্টিটিউশনের হাত ধরি। আমরা এখন রয়েছি এই ইনস্টিটিউশনে এবং এই ইনস্টিটিউশনে বহু মানুষের সাথে আমরা কথা বলবো, জেনে নেব এখানে কী রকমভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়, কিভাবে তাদেরকে সাপোর্ট করা হয় এবং কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যান। আমরা এখন আছি হিমালয়ের মাউন্টেনিং ইনস্টিটিউশনে। এখানে আমরা বহু কৃতি মানুষদেরকে দেখতে পেয়েছি এবং বহু কৃতি মানুষ তাদের নাম আজকে ইতিহাসে খোদাই করে রেখে দিয়েছেন। যে সমস্ত মানুষেরা আজ পর্বত আরোহীর সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে একজন অন্যতম ব্যক্তি হলেন শ্রী কাজী শেরপা। ইনি মাত্র 20 ঘন্টার মধ্যে বেস ক্যাম্প থেকে একেবারে পর্বত আরোহণ করে সেখানে উনি উইদাউট অক্সিজেনে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এসেছেন। নমস্কার, আমি মনামি চলে এসেছি প্যারাডাইস ইনক্রেডিবলের তরফ থেকে। আমরা এখন রয়েছি দার্জিলিংয়ে হিমালয় মাউন্টেনিং ইনস্টিটিউশনে। আমরা এখানে এসেছি কারণ হচ্ছে এখানে যে ট্রেনিংগুলো চলে মাউন্টেন মানে ক্লাইম্ব করার জন্য, সেই সমস্ত কিভাবে তারা ট্রেনিং দেন এবং কিভাবে ট্রেনিং নিয়ে তারা আজ পর্বতারোহণ করছেন সেই সমস্ত কিছু জানার জন্যই আমরা এখানে পৌঁছে গেছি এবং আমরা কথা বলে নেব এই ইনস্টিটিউশনে স্বনামধন্য প্রিন্সিপালের সাথে। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ग्रुप कैप्टन जय किशन। अच्छा, आप कितने दिन यहाँ पे रहे? मैम मेरे को करीब 1.5 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, आप कौन सा पोस्ट यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं? आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, यू कैन कॉल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ओके। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग। When you talk about training, it is the operation of the institute and the maintenance part as well. ओके, तो आप आपका बारे में कुछ बोलेंगे तो दर्शक को सुविधा होगा। मेरे बारे में आई थिंक आई एम फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड आई वाज कमीशन इन 1996. आई एम अ parachute jump instructor and parallelly I followed mount training for past 20 years. I am on deputation to Himalaya Mountain Institute Darjeeling for more than 1.5 years. And in fact, I did my basic and advanced course from this very institute, ma'am, in year 2000-2001. Okay. And in past, I have climbed various peaks in India and abroad. I've been to Mount Everest, Mount Lhotse, Mount Choyu, and then we climbed highest peak of North America in Alaska, that is Mount Denali. Okay. उसके बाद फिर हमने माउंट अकानकागुआ क्लाइम किया है, जो कि अर्जेंटीना का हाईएस्ट पीक है। देन लास्ट ऑन 15 अगस्त हमने टीम को लेड किया, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। उस पर क्लाइम किया हमने 15 अगस्त के दिन, और साथ में वहाँ पे हमने 18,600 फीट पे आके योगासन किया। ओके। सो डूइंग योगासन ऑन टॉप ऑफ अ पीक समिट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड for performing yoga asana and promoting Indian culture, Indian tradition. Okay. Ma'am. तो
ये जो आपका जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन कितने टाइम से हो रहा है? मैम जो इंस्टीट्यूट का एग्जिस्टेंस है, टुमारो वी गोइंग टू सेलिब्रेट 66 years of our existence. So if you go down to memory line, institute was established in 1954 on 4th November. जैसा कि हम सभी जानते हैं, Tenzing Norgay Sherpa and Mr. Edmund Hillary, Sir Edmund Hillary, they climbed Everest in 1953 on 29th May. So उससे प्रेरित होकर के then पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थॉट कि इंडिया शुड हैव देयर ओन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट. ओके. तो उस विजन के साथ 1954 में HMI का फाउंडेशन स्टोन रखा गया और तभी से लेके अब तक हमने करीब करीब इंडिया से एंड अब्रॉड से 42,000 प्लस ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग किया है माउंटेनिंग की फील्ड में. ओके ओके ओके. यहाँ का फाउंडर कौन है? यहाँ के फाउंडर अगर आप देखेंगे तो दो नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है. वन इज लेट श्री तेंजिंग नोरगे शेरपा, who was the first person along with Admiral Hillary to climb Mount Everest in year 1953, and a second renowned name is Major Andy Gyal. He was the founder and the first principal of this institute. There are two founding, that base of this institute. Okay. Planning करना, training कराना, mapping करना, कौन सी building कहाँ आएगी. फिर तेंजिंग साहब वाला फर्स्ट वन जिन्होंने कि जो सिक्किम में आज के में ट्रैकिंग रूट है HMI का बेस कैंप जाए तक का, वो सारे रूट जो है तेंजिंग साहब ने एक्सप्लोर किए. ओके. सो दे आर टू फाउंडेशन नेम विच यू कैन, मतलब कि हम फ़ख्र से बोल सकते हैं इन दो लोगों ने इस इंस्टीट्यूट के एक जो आज हम रूप देख रहे हैं. अच्छा. वो उनकी सोच से शुरुआत हुई. हालांकि जो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी विज़न से शुरुआत थी, काम शुरू हुए, तो धीरे धीरे काम बढ़ते गए और आज की डेट में हम यहाँ पे जैसा बताया 42,000 प्लस ट्रेन्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं. ओके ओके ओके. इस इंस्टीट्यूशन का के ट्रेनिंग लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मैम लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट वी कंडक्ट वेरियस कोर्सेज स्टार्टिंग विद द बेसिक कोर्स, जिसमें किसी कुछ मालूम नहीं होता कि माउंटेनिंग होता क्या है. देन देयर इज अ एडवांस कोर्स फॉलोड बाय सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, मेथड इंस्ट्रक्शंस कोर्स. सो इस तरह के अलग अलग कोर्सेज हैं. देन वी डू कंडक्ट एडवेंचर कोर्स फॉर जो कि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए करने आते हैं. अच्छा. दोज हु वांट टू परस्यू प्रोफेशनल माउंटेनिंग, उनकी शुरुआत बेसिक कोर्स से होती है. ओके. तो बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, इनका ड्यूरेशन 28 डेज का होता है, जिसमें करीब 8 दिन के आसपास उनका ट्रेनिंग HMI कैंपस के ट्रेनिंग एरिया में यहीं पर होता है. ओके. उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है एंड दोज हु क्वालिफाई द टेस्ट देन ओनली दिस कैंडिडेट्स गो टू आवर सिक्किम बेस कैंप. ओके. जो इसका हाइट है 14,600 फीट. तो वहाँ पे करीब वो 2 वीक के आसपास ट्रेनिंग करते हैं. वहाँ पे स्नो, एक्चुअल स्नो में ग्लेशियर ट्रेनिंग का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है मैम, कि हाउ टू क्लाइंब माउंटेन्स, कोल्ड वेदर में कैसे रहना है और किस तरह के इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने हैं, बर्फ़ से पानी कैसे, सिंपल सी भाषा में कि अब आपको वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पानी कहाँ से ढूंढेंगे. ठीक है. वहाँ पे हम वहाँ पे दाल चावल खा के इतनी हाइट पे नहीं कर सकते. तो वहाँ पे किस तरह का फूड इस्तेमाल होता है, अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से कैसे प्रोटेक्ट करना है और साथ में क्लाइंब भी करना है. क्योंकि माउंटेनिंग इज़ नॉट ओनली डूइंग अ कोर्स, it's a journey, it's a mannerism. We spend our whole life to learn mountaineering, and learning never stops. So starting with 28 days a person qualified from basic course, उनको alpha grading मिलेगा, then only they can apply for advanced course. Okay. And इसके बाद तो sky is unlimited. People go for climbing various peaks, starting from smaller peaks 6,000 meters, 7,000 meters, 8,000 meters, and सभी के लिए एक क्रेज एवरेस्ट तो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा. हाँ. जी. यहाँ पे कोई एज स्टार्ट बा एज लिमिटेशन कुछ है? जो यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं उनके लिए एज रिस्ट्रिक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 17 ईयर्स अप टू 45 ईयर्स. इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल फिटनेस, मेडिकल कंडीशन, वी डू गिव द वेवर्स. सो फर्स्ट इज दैट दे शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, एज आर वेरी वेल प्रिस्क्राइब्ड, और बाकी एज एंड व्हेन वेवर्स आर रिक्वायर्ड वी डू गिव द वेवर्स. यहाँ का नेशनलिटी का और सेक्स का कोई पाबंदी का होता है क्या? नहीं मैम, इट्स ओपन फॉर एनीवन एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. Separate courses for women and men, and we have combined courses also. Okay. And women are equally strong. At time they are proven better than men. Being a man, I am telling you, women are proven better than men at given time. So they are equally most welcome, and we have the option for combined.
जिसमें मैन वुमेन दोनों साथ कोर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, और इफ सम वुमेन और लेडी वांट टू डू कोर्स सेपरेटली स्पेसिफिक फॉर द वुमेन, तो दैट कोर्स आल्सो प्लान मैम। ओके एम इज टू प्रमोट एंड सपोर्ट। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आता है उनका जो गोल रहता है ना, तो सब यहाँ पर ट्रेनिंग होने के बाद सब क्या वो अचीव कर पाते हैं क्या? मैं बता सकता हूँ मैम कि 100% जितने भी ट्रेन आते हैं दे ऑल अचीव समथिंग। ओके। क्योंकि हर एक का ड्रीम हो सकता है माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना। हाँ हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो माउंट एवरेस्ट ही क्लाइम करे, लेकिन जो भी वो यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं वो एक करेक्टर और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करते हैं। अच्छा। एडवेंचर में आने का, दे आर गेटिंग क्लोज टू नेचर। तो जो एक होता है कि हम अब नेचर के पास जाते हैं और हॉस्टल एनवायरनमेंट में कुछ जो कभी ट्राई नहीं किया वो ट्राई करते हैं, तो वो एक सपना और एक जो यू कैन कॉल इट एक जिज्ञासा होती है अंदर ना, एंथुसियाज्म कुछ करना है, तो वो गोल तो अचीव होता ही है। अगर कल को आप भी सपोज आप कोशिश करते हैं, सोचा मैंने एवरेस्ट क्लाइम करना है, ठीक है, एवरेस्ट इज अ लॉन्ग जर्नी या कोई पीक क्लाइंबिंग करने के लिए, लेकिन आप कोर्स करने आए, आपने कोर्स सक्सेसफुल कंप्लीट किया, आपको आईसेक्स मिला, आपको जो आप अपने ब्लेजर के ऊपर यूनिफॉर्म में कहीं भी लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट है, सो दैट इज अचीव्ड। Okay. And once you go back after any of the adventure course, जो नहीं कि आप माउंटेनिंग ही कर रहे हैं, अगर आप साइकिलिंग एक्सपीडिशन कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट से स्काई डाइविंग जंप कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस, लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। So far I think we can spread this spirit of adventure. टास्क इज 100% अचीव। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति क्लाइंबिंग करना चाहता है तो उनका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी में पीपल हैव टू जस्ट फिल द एप्लीकेशन, बिकॉज वेटिंग पीरियड जो है कोर्स के लिए बहुत लंबा है, 2 साल तक लोगों को वेट करना पड़ता है। सो फर्स्ट इज फिल द फॉर्म एज पर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आर गिवन इन दैट, मेक द पेमेंट, एंड उसके साथ साथ हमने कुछ ट्रेनिंग रिज्यूम पब्लिश कर रखा है अपने वेब पेज के ऊपर। एज पर द वैकेंसी वी गिव अलॉटमेंट। नाउ वी हैव मेड कि आपको कोर्स पे आने से 3 महीने पहले क्या तैयारी करनी है। हाँ, क्या क्या? तो उसमें फिजिकल फिटनेस है, उसमें हमने एंडोरेंस की ट्रेनिंग का बता रखे, आपको इतने तरह से एंडोरेंस रन करना है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, कोर ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, बॉडी के किस किस पार्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, तो उस हमने एक पैटर्न बना के हमने वेबसाइट पर वो भी पब्लिश कर रखा है, ताकि जब वो ट्रेनीज यहाँ पे आए तो कम से कम उन्होंने 3 महीने पहले प्रैक्टिस किया हो, 3 महीने लगातार प्रैक्टिस किया हो, सो दे आर फिजिकली फिट, मेडिकली फिट एंड मेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग। ओके। यहाँ पे एजुकेशन का कोई पाबंदी रहता है क्या? ये कौन सी टाइम के बाद ये कर सकते हैं? No, ma'am, 10 it's क्लास, open. 12? It's open. Okay. It's open. 10 क्लास के नीचे भी हो सकता है? नीचे भी कर सकते हैं मैम। एज इज द लिमिटेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। अच्छा। हाँ जी मैम। दोज हु वांट टू बिकम इंस्ट्रक्टर्स, उनके लिए 12th प्लस के लिए MY कोर्स होता है मैम, सो दैट वी आर पब्लिश्ड ऑन साइट। ओके। अच्छा, जो हिमालय माउंटेन का अभी जो रेंज है, अभी क्या है रेंज जैसे कि इसका जो क्या बोलता है, उच्चता जो है, तो अभी क्या है इसका हाइट क्या है? हमारे इंस्टीट्यूट के लोकेशन मैम? हाँ, आपका इंस्टीट्यूशन का लोकेशन और बाहर में जो है जो उसका हाइट कितना है? जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का लोकेशन आप दार्जिलिंग में आ रखे हैं, अभी जो हमारा हाइट यहाँ पे जो वेरी करता है, दार्जिलिंग सिटी से यहाँ तक में 6200 से लेकर 6500 तक वेरी करता है। ठीक है मैम, ये फीट में है। एंड बाकी जो माउंटेन इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया के अंदर 4 और माउंटेन इंस्टीट्यूट है, उनका भी हाइट करीब करीब इतना ही वेरी करता है। लेकिन अगर आप पीक्स के बारे में बात करें, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, सो यू विल सरप्राइज जब हम हिमालय की बात करते हैं, हिमालयन रेंज, हिमालय पर्वत शुरू होते हैं, आप देखेंगे कि नेपाल से शुरू होकर के चाइना तक हिमालय रेंज जा रखी है। लेकिन इन हिमालय का जो हिमालयन रेंज जिसको हम बोलते हैं, उसका 73% माउंटेन्स इंडिया के अंदर है। हाँ, वो तो है। स्टार्टिंग फ्रॉम JNK से लेकर के देन कमिंग टू गढ़वाल हिमालय से आप इधर आते हैं अपना ऊपर, जैसे दार्जिलिंग आ गया, सिक्किम हिमालय हो गया, सिक्किम का फिर अरुणाचल हिमालय, सो दिस फुल रेंज, हिमालयन जो रेंज है उसका 73% इटसेल्फ इज इन इंडिया। और इसमें मतलब कि गर्व की बात है कि जो 7000 मीटर्स की जो मैक्सिमम पीक हैं वो इंडिया के अंदर है।
सच में ये तो गर्व की बात है। अब ये देखिए ना, जैसे कि अब जो हमारा बेस कैंप है 14,600 फीट पर, ऑस्ट्रेलिया या फिर आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ की हाईएस्ट पीक, या फिर इंडोनेशिया में जाइए वहाँ की हाईएस्ट पीक जो होगी, पॉइंट जो होगा वो हमारे बेस कैंप की हाइट जितना है। अच्छा, ओके, so we should feel proud that we have such a beautiful and good mountains with us. Rich resource for our yeah. country. यहाँ का गुड सीजन क्या है क्लाइंब करने के लिए? क्लाइंबिंग जो माउंटेनिंग है उसमें 2 सीजन होते हैं, एक होता है प्री मानसून, एक होता है पोस्ट मानसून। प्री मानसून पीरियड जनरली मार्च से लेकर, जो ट्रेनिंग का मैं बता रहा हूँ वो मार्च से शुरू होकर के मई एंड तक चलता है। अच्छा, उसके बाद बिकॉज ऑफ मानसून वी स्टॉप द ट्रेनिंग पार्ट। उसके बाद वी रिज्यूम आवर ट्रेनिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसके फिर दिसंबर एंड तक चलता है। ओके, सो दिस आर मेन सीजन फॉर माउंटेनिंग कोर्सेज एज वेल एज पीपल हु वांट टू क्लाइंब माउंटेन्स, वो इन्हीं सीजन में क्लाइंब करने जाते हैं मैम। ट्रेनिंग भी इसी सीजन में होती है और मैक्सिमम क्लाइंबिंग भी इन्हीं सीजन में होती है मैम। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारा पीक है, हाँ तो जी मैम। कोई पीक होता है बहुत अच्छा होता है और कोई बहुत क्या है जो प्रॉब्लम होता है, जो उस पीक में जाने से बहुत बहुत लोग डरते हैं। Yes, तो क्या क्या आपका यहाँ पे क्या अच्छा पीक हुआ क्या? से अगर आप किसी माउंटेन से पूछेंगे ऑल पीक्स आर गुड मैम। गुड, या इट्स डिपेंड कि यहाँ पर सर्कमस्टांस कैसे हैं, मौसम कैसे हैं। लाइक जो हमारा HMI का बेस कैंप है वहाँ पे फ्रे पीक है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 19,000 फीट का हाइट है उसका, लेकिन इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पीक। ऐसे स्टोन की तरह उनका एक फेस दिखाई देता है। अच्छा। एंड फ्रॉम बेस कैंप यू कैन सी, एंड इट इज़ बिट टेक्निकल क्लाइंबिंग। हालांकि 19,000 फीट का हाइट है, एवरेज 29,030 फीट है। हो सकता है एक बार को एवरेज पे लोग सक्सेसफुल हो जाएं क्लाइंब करने में 29,000 फीट, और वही लोग शायद फ्रे पीक क्लाइंब ना कर पाएँ। तो टेक्निकल डिफिकल्टीज का फ़र्क पड़ता है मैम। ओके, सो दे आर गुड पीक्स इन सिक्किम ऑल्सो, लाइक जोंगसंग पीक है मैम, जिसका हाइट 24,000 प्लस है। ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट पीक। डिफिकल्ट पीक है और बहुत ही कम लोगों ने क्लाइंब किया है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो क्लाइंब किया था इस पीक को 2012 में किया था, और आज 8 साल से अभी तक क्लाइंब हुआ नहीं है। तो वी आर प्लाइंग द सेम पीक। इस साल क्लाइंब करना था लेकिन कोरोना की वजह से हम उसको नहीं कर पाए, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर विल गो फॉर दैट माउंट जोंगसंग पीक मैम। दिस इज द मैंडेट विच वी आर थिंकिंग ओवर इन सिक्किम एरिया ओनली। अच्छा, आपका जो क्लाइंबर जो जाते हैं ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो क्लाइंब करने जाते हैं कुछ पीक पे, तो उसके साथ कौन कौन जाता है, कितना आदमी जाता है उसके साथ? मैम क्लाइंबिंग 2 तरह का होता है, एक होता है अल्पाइन क्लाइंबिंग, एक होता है कि आप एज ए ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग में क्या आपका पूरा टीम होता है, आपके पास सपोर्ट टीम भी है, आपका मेडिकल भी है, आपके पास शेरपा सपोर्ट भी है, आपके पास हाई एल्टीट्यूड पोर्टर भी हैं जो कि आपकी मदद कर रहे हैं आपके कैंप सेट करने में, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपका राशन ले जाने में मदद कर रहे हैं। आपका जो ऊपर स्नो में क्लाइंब करना है आइस वॉल के ऊपर, वहाँ पर रूट ओपनिंग बोला जाता है, रूट ओपनिंग में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको रोप फिक्स में मदद कर रहे हैं। तो दैट इज सपोर्टेड एक्सपीडिशन होता है मैम। Okay. तो उसका जो स्ट्रेंथ डिपेंडिंग कि कितना टीम मेंबर है उनके हिसाब से, इट कुड बी अ स्मॉल टीम लाइक 8 क्लाइंबर्स हैं और करीब करीब 8 से 10 लोगों का सपोर्ट टीम हो गया। अच्छा, सिमिलरली इफ़ यू आर पर्सन डूइंग अल्पाइन क्लाइंबिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें टीम छोटा होता है, उसमें वो लोग खुद ही अपना राशन पानी लॉजिस्टिक सब कुछ साथ लेके चलते हैं। तो वो 4 लोगों का टीम होगा, 4 लोग खुद ही एक दूसरी मदद करेंगे, दिल हेल्प ईच अदर। रूट ओपनिंग भी उनको खुद ही करना है, राशन जो है उनका जो कैरी करना है वो उनको खुद कैरी करना है, मेडिकल भी उनको अपने आप सपोर्ट करना है आपस में। सो दिस इज कॉल्ड अल्पाइन क्लाइंबिंग मैम। ओके ओके ओके। आपका कितना कैंप होता है जो क्लाइंब करता है? मैम डिपेंड करता है कि पीक का हाइट कितना और उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना। जैसे कि मैंने फ्रे का एग्जांपल आपको दिया। हाँ। तो फ्रे क्लाइंब करने के लिए 2 कैंप लगेंगे मैम। हमारा बेस कैंप ऑलरेडी बना हुआ है, एक एडवांस बेस कैंप लगेगा और उसके बाद वी गो फॉर समिट। ओके ओके। लाइक अब एवरेस्ट की बात करते तो एवरेस्ट में डिपेंड करता है आप चाइना से क्लाइंब कर रहे हैं या नेपाल से क्लाइंब कर रहे हैं, तो उसमें बेस कैंप के अलावा कम से कम 5 से 7 कैंप लगते हैं मैम, डिपेंडिंग अपॉन द रूट। ओके। और हर एक कैंप के बीच में जो गैप होता है वो करीब करीब 3000 फीट के आसपास का रहता है मैम। 3000 फीट का वर्टिकल गैप रहता है मैम एक कैंप से दूसरे कैंप में। तो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आज मैं 10,000 फीट के हाइट पे पहुंच गया हूँ, तो
तो मेरे को कम से कम 10,000 फीट पे 2 दिन काटने हैं, तभी मैं उससे ऊपर जाऊंगा मैम। अच्छा। तो जो जितना भी क्लाइंबर होगा, चाहे आप लेह में भी जाएंगे एज ए टूरिस्ट जाएंगे, तो यही एडवाइस किया जाएगा, अगर आप क्लाइंब करना आता है तब भी आपको ये एडवाइस किया जाएगा कि आप पहले एक 10,000 फीट की हाइट पर पहुँचे हैं, वहाँ आप लोकल एक्लिमेटाइजेशन कर रहे हैं, फिर वहाँ से आप थोड़ा हाइट गेन करने गए 12,000 फीट या 13,000 फीट, वहाँ टच किया और नीचे वापस 10,000 फीट पे आ गए। तो इससे योर बॉडी इज गेटिंग एडजस्ट टू दैट न्यू एनवायरनमेंट ऑक्सीजन लेवल के लिए, ठीक है। फिर 2 दिन बाद आप 13,000 फीट हाइट पे पहुंच गए, वहाँ पे आपने एक रात काटी, फिर अगले दिन आप वहाँ से थोड़ा और ऊपर गए 15,000 फीट पे टच किया और वापस आ गए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो हायर कैंप पे जाते हैं मैम। अच्छा, आपको कैसे पता चलता कोई एक क्लाइंबर ऊपर जाने के बाद वो जो उसका जो गोल है, वो गोल जो लेके जाता है, वो गोल अचीव किया, आपको कैसे पता चलता है? कोई भी तो जा सकता है, बोल सकते हैं हाँ हम गोल अचीव करके चले आए हैं। वेरी ट्रू मैम। प्रूफ की बात कर रहे हैं आप, तो प्रूफ है कि जब कोई सबमिट पे पहुंचते हैं, दे हैव टू टेक लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स होते हैं, उनका वीडियो फुटेज होता है, फर्स्ट इज दैट। फिर दूसरा क्या कि ऐसा नहीं है कि उस पीक पे वो अकेले क्लाइंब कर रहे हैं, उनके साथ कोई ना कोई को क्लाइंबर रहेंगे, दूसरी टीम भी क्लाइंब करती हैं। अगर कोई चुपचाप अकेले जा रहा है तो बात दूसरी है, अदरवाइज जैसे माउंटेनिंग का सीजन होता है, लोगों को मालूम होता है कि इस सीजन में कौन कौन लोग जा रहे हैं। मान ली एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट पे जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पे जनरली ग्रुप को मालूम होता है कि इस सीजन में कौन कौन लोग ऊपर गए हैं और कितने लोग आज, मान लीजिए आज कल सवेरे सबमिट के लिए निकलना है हमें, और हम सबमिट कैंप पे हैं, तो जितने लोग सबमिट कैंप पे उनको शक्ल दिखाई दे ही आती है। दूसरा, आफ्टर रीचिंग टॉप ऑफ एनी ऑफ द माउंटेन, उसका सराउंडिंग के आसपास फोटो लेते हैं। अच्छा, है ना, फोटो है, वीडियो फुटेज है, उससे वी कैन कोरिलेट कि हाँ ये वहाँ जनरल क्लाइंब है और सबमिट ऊपर तक पहुँचे हैं। और जो हैंडलिंग एजेंसी होती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, दे गिव अ सर्टिफिकेट कि जो ये क्लाइंबर है, इनका नाम ये है, ये इस हाइट तक गए हैं। जो फॉरेन एक्सपीडिशन होते हैं उनमें लोकल लाइजन ऑफिसर भी होते हैं, तो वो लाइजन ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बेस पे क्रेडेंशियल इस्टेब्लिश किए जाते हैं मैम। अच्छा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिसमें उन्होंने फ्रॉजी करके उसको फोटो मॉफ करके फोटो शूट करके भी ऐसे किया, लेकिन वो आगे पीछे कहीं ना कहीं से खबर मिल के मालूम पड़ जाती है कि ये फ्रॉड है। अच्छा। तो इट इज़ ईजी टू इस्टेब्लिश कि हाँ ये के जो क्लेम है जेन्युइन है या फ्रॉड है मैम। फ्रॉड है, वी कैन इस्टेब्लिश दैट पार्ट। ओके। अगर ऊपर जाने के बाद अगर कोई किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको कैसे पता चलता है? लाइक मैम, एनी माउंटेनिंग एक्सपीरियंस जब भी कभी क्लाइंब करने जाते हैं, उसमें उनके पास कम्युनिकेशन सेट रहते हैं, और होना भी चाहिए। कुछ लोग नेग्लिजेंस करते हैं लेकिन नहीं जाते, तो गलती है उनके लिए। हमेशा कम्युनिकेशन सेट रहता है। और जिस भी इलाके में आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जैसे अगर इंडिया में आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, डीएम होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। अगर आप कंचनजंगा नेशनल पार्क में, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका क्लाइंबिंग रूट या ट्रैकिंग रूट ये है और इस डेट पे आप इस जगह पर होंगे। अच्छा। सो इन केस कुछ अगर दिक्कत ऊपर आई है तो थ्रू सैटेलाइट फ़ोन या कम्युनिकेशन सेट जो आरटी सेट्स होते हैं, उनके थ्रू पर्सन हैज़ टू कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइड की मेरे पास ये समस्या आ गई है, तो उनको फिर रेस्क्यू लॉन्च किया जाता है, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू होता है, बाई फुट भी रेस्क्यू टीम जाती हैं, दैट कैन बी डन। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं कि लोगों ने रूट कुछ बताया और वो किसी दे वेंट ऑन डिफरेंट रूट, तो वो तो प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसे इंसिडेंट में पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। लाइक लास्ट ईयर ही नंदा देवी पर्वत पे जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें करीब 7 to 8 पीपल किल्ड, क्योंकि उन्होंने रूट कुछ लेना था एंड दे वेंट ऑन डिफरेंट रूट में, और वहाँ पे एवलांच में फंस गया, तो कम्युनिकेशन गैप हुआ नहीं हुआ, तो काफ़ी उसमें इश्यूज थे। ऊपर जाने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है जो एक क्लाइंबर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है? मैम, मेन प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही आप 14,000 फीट से ऊपर जाते हैं, तो हालांकि ऑक्सीजन की कमी तो 10,000 फीट से ही कमी होनी शुरू हो जाती है, तो अपने आप को एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। वी कॉल इट AMS, अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो इसमें एक तो सांस लेने में समस्या आती है, तो धीरे धीरे अगर हम अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कर रहे हैं, तो ये आप अपना बॉडी सिस्टम जो है वहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं हाई अल्टीट्यूड में, क्योंकि एयर ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर। तो जितना आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का उतना कमी होता जाएगा। 17,000 पे और ज़्यादा कमी होगा, फिर व्हेन यू रीच 21,000 फिर ऑक्सीजन और कमी आ गया। फिर क्या है कि ऊपर पानी पीने का मन नहीं करता, योर एपेटाइट गोज डाउन,
आपके सामने 5 स्टार का 56 भोग का खाना रख दिया जाएगा ना, तब भी आपको खाने का मन नहीं करेगा कि मतलब कैसे खाऊं। तो वी ऑलवेज टीच कि कुछ भी हो, मेक योर ईटिंग हैबिट्स माउंटेन में, कि आपको मैगी पसंद आती है, एक दिन मैगी खा ली, बिस्किट्स खा लिए, जैगरी खा लिया, सत्तू जो अपना इंडियन फूड सत्तू है, सत्तू को पानी में मिला के वैसे खा लिया, एंड लाइक लड्डू बना के ले गए, अच्छा, स्वीट ले गए, जैगरी ले गए। उसके अलावा हाई एनर्जी आपके चॉकलेट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, अच्छा, नमकीन भुजिया भी चलेगी। मतलब पीपल शुड डेवलप देयर टेस्ट। माउंटेन्स में अगर आप एक माउंटेनियर या एनी वन एज ए नॉर्मल ट्रैकर ऑल्सो, अगर इफ़ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचना है, माथे को बचा के रखना है, हवा ना लगे, नाक पे ठंडी हवा ना लगे, हाथों में सीधी हवा ना लगे, ग्लव्स पहन के रखना है, शूज़ में सॉक्स पहन के रखना है ताकि हवा ना लगे। तो एक तो कोल्ड से प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। नंबर 2, आपको अपने खाने और पीने की तरफ ज़बरदस्ती ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है। गर्म पानी पीजिए, उसमें आप हाइड्रेंट डालिए। अच्छा, टेस्ट डेवलप करने के लिए उसमें ORS होता है, टैंग आता है, तो ग्लूकोज डाल सकते हैं। गर्म पानी पीना है ऊपर, ठंडा पानी नहीं। ठंडा पानी तो ऐसे ही हो ही जाता है, बड़ा हो जाता है। देन देयर डूज एंड डोंट्स इन माउंटेन, अ लॉन्ग लिस्ट इज देयर, कि आप बेयर हैंड जो है किसी मेटल को नहीं छुएंगे, उससे फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। आप अगर फोटो वीडियो आपसे शेयर करेंगे, हम विल शो यू कि जब फ्रॉस्ट बाइट होता है कैसे होता है। कि आप उन्होंने ग्लव्स निकाल दिया, अब मान लीजिए -30 डिग्री टेम्परेचर है एवरेस्ट समिट पे, या फिर आप नॉर्मल पीक के ऊपर भी, हमारे बेस कैंप में ही 14,000-17,000 फीट की हाइट पे हवा चल रही है, और हवा चलने में क्या है, जो चिल फैक्टर वो बढ़ जाता है मैम। मान लीजिए अभी टेम्परेचर -1 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे हवा बढ़ेगी वो -1 से -2, -3, -5 तक पहुंच जाएगा, -10 डिग्री पहुंच जाएगा। उस समय ग्लव्स नहीं पहन रखे, हाथों में सीधी हवा लगी, ठीक है, एंड उस पे इफ समवन ट्राई टू टच एनी मेटल पोर्शन तो स्किन पील ऑफ हो जाएगा, और फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं मैम इसको। ओके। तो इट कुड हैपन टू गेट इनटू फ्रॉस्ट बाइट, तो उसमें बहुत ही आगे सीरियस इश्यूज बन सकते हैं, एम्प्यूट तक करने पड़ता है फिंगर। और वंस यू गोइंग इन हाइट एरिया, स्नो बाउंड है पूरा, तो यू हैव टू वियर गॉगल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज एंड द वाइट आउट, क्योंकि जो स्नो का रिफ्लेक्शन होता है मैम, वी कॉल इट स्नो ब्लाइंडनेस, तो उससे आंखों में एकदम से जो रिफ्लेक्शन आता है, इट हर्ट्स योर आईज एंड अ पर्सन कैन बिकम टेम्परेरी ब्लाइंड। यस, मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा। उसमें क्या हुआ, हम अर्जेंटीना में थे, वी आर क्लाइंबिंग अ पीक 23,000 फीट का हाइट था, और ऊपर चलते चलते जो आइस, क्योंकि बाहर से आइस और मॉइस्चर, तो वो गॉगल्स के ऊपर इट्स फ्रोजन देयर। तो थोड़ी देर के लिए बस मैं गॉगल चेंज किया और दूसरा गॉगल लगाया, इतने में माई आइज वर जस्ट एक्सपोज टू द एक्सट्रीम वाइट आउट। तो रिफ्लेक्शन से कुछ ही देर के लिए शायद मैं अंदर गया होगा, एंड बाय टाइम मैं सबमिट करके नीचे आया कैंप तक, इट वाज पेनिंग लाइक, मतलब कि भयंकर तरीके से बहुत पेन था। और उसका अगर मैं फोटो आपको दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे ओह ये तो आंख से गया शायद। ये हालत है। तो माउंटेन्स में लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स आते हैं मैम। अच्छा, जो क्लाइंबर पीक में चढ़ते हैं तो उनका जो ड्रेसेस होता है, वो ड्रेसेस क्या नॉर्मल जो हम लोग जब कोई पीक में जाते हैं घूमने के लिए, उस ड्रेसेस के से अलग होता है? यस मैम, उससे अलग होता है, बिकॉज इट हैज़ टू बी ना विंड प्रूफ एज वेल एज टेम्परेचर का उसको मेंटेन करना पड़ता है कि बाहर से जो हवा है उसको रोकेगा। देन वी वियर क्लोथ्स इन लेयर्स, और उसमें एक लेयर इनर का होगा, फिर उसके ऊपर एक लेयर होगा, फिर जो अच्छा लेयर होगा उसमें गूज नेक्स होता है मैम, उसको भरा जाता है। डक का जो गूज होता है, फेदर होता है, वो होता है, तो उसका क्वालिटी फ़र्क पड़ता है। एंड यू विल सरप्राइज, जैसे कि एवरेस्ट अगर किसी को जाना है तो उसका जो मतलब कि माउंटेनिंग गियर इटसेल्फ विल कॉस्ट क्लोज टू 2 लाख रुपीज़ मैम। स्टार्टिंग जैकेट का कॉस्ट इज अराउंड 50,000 के आसपास आता है मैम। Then similar thing happened to a lower pant, then climbing boot 30,000 rupees, then socks, caps, layers of gloves पहनने पड़ते हैं। यहाँ का कोर्स फीस क्या है सर? मैम फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारी फीस है वो 16,400 रुपीज़ है, बिकॉज वी गेट द ग्रांट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड यूथ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से।
सो फीस जो काफ़ी सब्सिडाइज रेट पर है, अदरवाइज जो कॉस्ट आती है पर कोर्स की इट कम्स अराउंड 65,000 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 28 डेज मैम। 28 बेसिक डेज कोर्स का। या एडवांस उसके कोर्स बाद उसके बाद कोई उसके बाद फिर अगर उन्हें एडवांस कोर्स करना तो फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा उन्हें, तो भी फीस वही रहेगा, एक साल का फीस। एक साल का फीस एक वही? कोर्स का फीस होता है मैम। अच्छा 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 अच्छा। और एवरी ईयर जो फीस है 10% बढ़ते आता है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज मैम। ओके। और जो आपका जो ड्रेस कोड होता है, इस ड्रेस कोड का जो फीस होता है वो सब कुछ इंक्लूड है हमारे पास Included? कोर्स के दौरान। Course के ड्यूरिंग दौरान, कोर्स वी प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, होस्ट अपना हॉस्टल का एकोमोडेशन, हाँ। रहना खाना पीना, फूडिंग, लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट, गोइंग टू आवर बेस कैम्प। So from the day they arrive at HMI till the time they depart from HMI, they are taken care. We provide everything. आफ्टर ट्रेनिंग उसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है Yes क्या? मैम, एंड सर्टिफिकेट मिलता है और ISEX उनका बैच मिलता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो बेसिक कोर्स करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका कैटेगरी कैसा, अल्फा ग्रेडिंग, ब्रावो ग्रेडिंग, चार्ली ग्रेडिंग, तो जो अल्फा ग्रेडिंग वो टॉप ग्रेडिंग है। ओके। Those who qualified with the alpha grading, they only can apply for the advanced course. कोई क्लाइंबर का जो सक्सेस होता है वो सक्सेस कौन सर्टिफाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? आप मैम इट इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। Institution, हाँ, यहाँ अच्छा, पे अच्छा, ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है। ओके। यहाँ पे जो माउंटेन का जो पीक है, इस पीक का सबसे अच्छा और हाइट वाला पीक क्या है? जैसे कि अगर आप सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में अगर आप हमारे बेस कैंप की बात करें, वी हैव माउंट फ्रे, देन उसके आसपास ही BC रॉय पीक है, माउंट योपनू है, पालुम है, माउंट तिंचिंगखांग इज मोस्ट फेवरेट पीक इन वेस्ट सिक्किम। और अगर आप डिफ़िकल्ट लेवल की बात करें तो माउंट जोनसंग पीक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीक इन नॉर्थ सिक्किम एरिया। ऑफ द रिकॉर्ड बोल तो कम से कम 25 पीक हैं जो क्लाइंब कर सकते हैं हम, 20 से 25 पीक। अच्छा, हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट पीक हमारे सामने कंचनजंगा है। हाँ होता है। लेकिन उसको क्लाइंब करने का यहाँ से परमिशन नहीं है मैम, सिक्किम की तरफ से। अच्छा, कहाँ उसको से? हम नेपाल से क्लाइंब कर नेपाल सकते से, हैं, अच्छा, बिकॉज होली पीक एंड रिलीजियस वैल्यूज हैं विच वी हैव टू रिस्पेक्ट। अच्छा। तो सिक्किम की तरफ से काफ़ी पीक जो है वो उसको प्रोहिबिटेड है क्लाइंब करने के लिए। अदरवाइज सिक्किम में बहुत सी पीक्स हैं जो कि अभी भी अनक्लाइम्ड है। ओके। पहले तो बहुत सारा लोग था जो ट्रेनिंग ना लेके जाते थे, मगर आप तो ट्रेनिंग लेके जाते, तो जो उन जो टाइम, उसकी जो टाइम था और अभी जो टाइम है, इस टाइम का फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। क्या? सबसे ज़्यादा फ़र्क है मैम कि अभी लोगों के पास नॉलेज है, हाँ, इंफॉर्मेशन है। हाँ। उस समय लोग एक्सप्लोर करते थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगे रूट कैसे बनेगा। जैसे कि जब 1921 में फर्स्ट टाइम एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए टीम तैयार किया तो जॉर्ज मेलोरी एंड एरविन, अगर आप हमारे म्यूज़ियम में जाएंगे उनका भी हिस्ट्री आप देखेंगे। इन 1923 दे वेंट टुवर्ड्स 21 से उन्होंने शुरुआत किया था, देन 23 में फाइनली तिब्बत साइड से दे फाउंड अ रूट कि यहाँ से प्रोबेबल रूट हो सकता है। और उसी समय उनका एक मिसहैप हुआ वेयर दे बोथ ऑफ देम गॉट लॉस्ट एंड उनका बॉडी काफ़ी टाइम बाद मिला। सो उस समय इंफॉर्मेशन और जो अवेयरनेस थी और नॉलेज कम थी, रिसोर्सेज उस तरह के इक्विपमेंट, उस तरह के अगर आप इक्विपमेंट कंपेयर करें और आज के इक्विपमेंट कंपेयर करें तो आज के इक्विपमेंट आर मच एडवांस। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन है, GPS आपके पास अवेलेबल है, आपका मैप्स बने हुए हैं। उस समय ये नहीं मालूम पड़ता था मैम कम्युनिकेशन की, अगर ऊपर माउंटेन में कुछ हो जाए हाँ। तो कौन बचाने आएगा, कितना राशन लेके जाना है, वहाँ पे सीढ़ी लैडर जो लगाना है वो कैसे लगाना है, रोप फिक्स करना है उसको कहाँ पे लगाएंगे। आज की डेट में अगर आपको एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो आप नेपाल की तरफ से फिक्स रूट है मैम, फिक्स रूट। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी का डायरेक्शन डाल दिया तो आपकी गाड़ी सीधी जा रही है, पहुँच रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजी जितना भी बढ़ गया हो, इंफॉर्मेशन और नॉलेज कितना भी आ गया हो, लेकिन चैलेंज जो है वो अभी भी सेम है मैम। ठीक, क्योंकि जो 29,030 फीट जब एवरेस्ट की बात करते हैं, हालांकि हम बोलते कि हाँ ट्रेडिशनल रूट है पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर भी जो नेचर एंड द मदर गॉडेस जो है ना, दे आर लार्जर देन आवर इमेजिनेशन मैम। वी कैनॉट फाइट अगेंस्ट नेचर। हम कितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा लें, कितना भी स्ट्रॉन्ग टीम बना लें, कितनी भी हम मेहनत कर लें अपने आप में,
अगर कुदरत ने साथ नहीं दिया, अगर नेचर ने साथ नहीं साथ दिया, नहीं दिया। मौसम ख़राब आ गया, तूफान आ गया, एक से एक अच्छे क्लाइंबर मैम दे पेरिश, मतलब सिंपल से रूट में उनको बहुत से मतलब कि डिजास्टर्स देखने Disaster, पड़े हैं, हाँ। पीपल लॉस देयर लाइफ। सो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी हैं। तभी इसलिए एडवेंचर की कोई भी एक्टिविटीज़ हो उसमें रिस्क हमेशा रहेगा मैम। अच्छा। कितनी बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट हो, लेकिन रिस्क एलिमेंट हमेशा रहेगा। चाहे आप वो सिक्किम में क्लाइंब कर रहे हैं, छोटी पीक आप लाइक हमारे बेस कैंप पे क्लाइंब कर रहे हैं 19,000 फीट पे, वी कैनॉट एंश्योर कि हमने आपको इतनी अच्छी तगड़ी सपोर्ट दे दिया, आपको इतना स्ट्रॉन्ग आपको हमने क्लाइंबिंग इक्विपमेंट दिया है, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि आप 100% समिट पे 19,000 फीट पे पहुंच पाएंगे। बहुत हो सकता है आप कल आप एवरेस्ट क्लाइंब करके आ गए 29,000 फीट, लेकिन 19,000-20,000 फीट क्लाइंब नहीं कर पा रहे। सो दिस इज नेचर, दिस इज अल्टीमेट फैक्टर विच डिसाइड्स कि आप ऊपर समिट पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे मैम। प्रिपरेशन इज वन पार्ट, इक्विपमेंट इज वन पार्ट, बट देयर इज समथिंग बिगर दैन दैट। अच्छा, यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है इस इंस्टीट्यूशन का, यहाँ का क्या क्या फेस्टिवल होता है? इंस्टीट्यूट का फेस्टिवल कल ही है मैम, एंड टुमारो वी गोइंग टू सेलिब्रेट 66th एनिवर्सरी ऑफ द इंस्टीट्यूट, and every year we celebrate 29th May as a birth anniversary of Tenzing Norgay Sherpa. So there are two festivals we celebrate at institute, ma'am. आपका हर ईयर कितना क्लाइंब कर सकता है अप्रॉक्स? ट्रेनिंग्स की बात करें तो मैम हमारे यहाँ से करीब मैम एवरी ईयर अबाउट 800 to 1,000 ट्रेनिंग्स के आसपास पास आउट होते हैं। सब ज़्यादा से ज़्यादा सर लोग की हिमालय का ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्यों, ऐसे क्यों? सी हाइट, ओके। जो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जितना हमारे पास वैरायटी ऑफ माउंटेन्स आते हैं, अगर आप देखें हिमालय जो रेंज है, हिमालयन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ से लेकर के पूरा ईस्ट एंड तक, नॉर्थ ईस्ट तक फैल रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम JNK से लेकर पीर पंजाल रेंज में आइए, फिर उत्तरांचल में शिमला, उत्तरांचल से फिर आप गढ़वाल हिमालय हो गया पूरा, देन कमिंग टू सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूरा बेल्ट है। एंड यू कैन सी ऑल काइंड ऑफ टेरेन। ओके। एक तरफ आप लेह लद्दाख जाते हैं तो वहाँ पे आपको जगह थोड़ा सा ग्रीनरी कम दिखाई देगा, अभी तो फिर भी ग्रीनरी आना शुरू हो गया वहाँ पे। सो वहाँ पे यू विल फाइंड दैट दैट प्लेटूज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, डेजर्ट, थोड़ा सा डेजर्ट का मिक्स रहेगा, थोड़ा बहुत हरियाली दिखाई देगी। देन ड्राई माउंटेन्स आर देयर, ठीक है, स्नो भी है, ड्राई भी है। यहाँ पे आप जैसे गढ़वाल हिमालय में आए तो थोड़ा सा आपको ट्रॉपिकल मानसून नेचर भी दिखाई देगा, ग्रीनरी दिखाई देगी काफ़ी हाइट तक। फिर उसके बाद आपको स्नो कवर माउंटेन दिखाई दिए। अच्छा। और सिक्किम हिमालय में आए, फिर इनका डिफ़िकल्टी लेवल मैम, कुछ आसान पीक्स भी हैं जिनको हम ट्रैकिंग पीक बोलते हैं। आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस से साथ ही साथ एक अपना फिजिकल फिटनेस रखते हुए आप 19 से 20,000 फीट तक की क्लाइंब कर सकते हैं। अच्छा। बाहर की लाइक इफ़ यू गो टुवर्ड्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, इंडोनेशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पे हाईएस्ट जो हाइट है वो इटसेल्फ इज अराउंड 18,000-19,000 फीट मैम, 20,000 फीट। और इंडिया में आपके पास 7,000 फीट, मतलब हो गया कि बेस कैंप का टाइम 7,000 फीट। अगर आपकी कोई पीक है तो उसकी हाइट ही 23,000 फीट के आसपास होगी। मॉडरेट पीक है, 7,000 मीटर्स पीक है, डिफ़िकल्ट पीक है। तो इतना सारा क्लाइंबर्स के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है टू क्लाइंब दिस माउंटेन्स, सो दैट्स व्हाई पीपल डू कम फॉर द टू क्लाइंब माउंटेन्स इन इंडिया। वी हैव टू लाइक समवेन अट्रैक्ट फॉरेन क्लाइंबर्स। अभी क्या है कि हमारे खुद के क्लाइंबर्स, लाइक मैं भी हूँ, मैं भी भाया के क्लाइंब करके आया पीक, लेकिन हाउ टू प्रमोट आवर ओन इंडियन माउंटेनियर, हाउ टू प्रमोट एंड स्पेंड आवर ओन माउंटेन फ्रेटर्निटी इन इंडिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसके लिए क्या पॉलिसी कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ थोड़ा अभी और करने की जरूरत है। और एक क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे आफ्टर ट्रेनिंग सबको क्या कोई एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे देते हैं? लाइक हमारे पास से कुछ इंसेंटिव में ट्रेनिंग्स को हाँ, नहीं मैम, हम तो उनसे, बल्कि इट्स अदर वे कि हम उनसे फीस लेते हैं। तो एक्सपेंशन उनको खुद ही करना पड़ता है वो फीस के लिए। तो
थैंक यू सर। आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। स्टे सेफ।